Students, today we are going to study the chapter Nature of Matter. As you know, you can see variety of materials around you, but they vary in their shapes, sizes, color and their properties. Today we are going to classify these materials according to their characteristics. सबसे पहले हम जितने भी मटेरियल हैं उनको हम जो सबसे पहली कैटेगरी है उसमें हम जिनमें उसे डिवाइड कर सकते हैं वो है नेचुरल मटेरियल, या सिंथेटिक, और इसे हम कह सकते हैं मैन मेड मटेरियल. Natural material are those materials which occur in nature, यानी कि जो हमारी नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है, जिसे गॉड ने बनाया है. दोज मटेरियल्स आर नोन एज नेचुरल मटेरियल. सिंथेटिक मटेरियल हैं those materials which are made by man. जिन चीज़ों को मैन ने बनाया है that are known as synthetic material. अब क्या आप कुछ मटेरियल मैं आपको दे रही हूँ उनको आप क्लासीफाई कर सकते हो, जैसे कि वुड, वाटर, एयर, ग्लास या स्टील प्लेट, मिल्क, प्लास्टिक. आपको इनको क्लासीफाई करना है तो कैसे करेंगे? वुड एज यू नो यू गेट फ्रॉम ट्री, तो ये हो गया नेचुरल मटेरियल. वाटर इज़ ऑल्सो अ नेचुरल मटेरियल. बट स्टील हमारे को गॉड ने नहीं दिया, ये मैन ने बनाया है. ऐसे ही एयर जो है वो नेचुरल मटेरियल है. अगर हम ग्लास को कंसिडर करें तो ग्लास जो है वो सिंथेटिक मटेरियल है. ठीक है. प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक मटेरियल है. मिल्क जो है इट इज़ वी आर गेटिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. सो दोज थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर they are known as natural material, and those things which we get from which are made by us, they are known as synthetic material. Now we have classified the materials around us in two main groups, natural material or synthetic material. Why do we classify the things? The point is, why do we classify the things? What is the need of classification? As you know, there are more than 1,000 things around you, more than lakh things around in the vicinity you are staying, more than crore things which you can see in your area, and innumerable things in the world. So it is very difficult to study about all the things separately. So for that, to make our study easy, we classify the things. That's why classification of material is important. All the material which you see around you is made up of matter. सभी चीज़ें जो हैं वो टाइनी पार्टिकल्स से बनी हुई हैं. That is known as matter. Or what is matter? All the things anything which has mass and occupies space. कोई भी चीज़ जिसके मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, that is known as matter.
Supposingly I have this matchstick. Matchbox is there. If I put matchsticks in it, they are occupying some space, and if I fill this matchbox, then the whole space will be occupied. So even a small matchstick, a stapler pin, which you all pins, whichever things you see around you, tiny things, even the microscopes, tiniest thing, they also occupy some space. So matter is, we can define matter as anything which occupies space and has some mass is known as matter. We can classify the matter into three groups. One is solid, liquid and gaseous. Solid, liquid and gaseous. We can classify the matter into three groups, that is solid, liquid and gaseous. As you can see, I have, this is solid, this phone is solid, the water is liquid, and if I burn some incense stick, if I spray perfume from this is gaseous. This is going to release a gas. So the matter can be classified into three main groups, that is solid, liquid and gases. Matter is made up of very small tiny particles. So if we see things which are solid, they have some characteristics which are different from liquids, and liquids are different from gases. If we see this difference between structure of solid, liquid and gases come due to the मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट. उनके मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, इसलिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में जो है डिफरेंस आता है. सॉलिड जो हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड. हम इनको इस तरह से दिखा रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही टाइनी होते हैं. वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज, बट these molecules are tightly packed. और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, दिस इज़ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है. दिस स्पेस इज़ वेरी लेस. द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी लेस. द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. Intermolecular space is very less. And solids, they have, solids जो हैं उनकी जो शेप है, शेप अगर हम बात करें तो सॉलिड्स की शेप जो है वो फिक्स्ड होती है, और उनकी जो वॉल्यूम है, अगर हम उनकी वॉल्यूम की बात करें तो वो डेफिनेट होती है. मगर अब हम इसी को लिक्विड्स के साथ कंपेयर करें तो लिक्विड में ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज़्यादा है. सो दे आर लूजली पैक्ड. दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर लेस टाइटली पैक्ड, or they are loosely packed. जो लिक्विड्स होते हैं इनकी जो शेप, अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें स्पेस ज़्यादा होती है. दे आर फार अवे, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, फार अवे फ्रॉम ईच अदर. और उनकी जो शेप की बात करें
तो उनकी शेप फिक्स नहीं होती, नो डेफिनेट शेप। अगर आप एक बाउल में डालोगे लिक्विड को तो वो बाउल की शेप ले लेगा। मैंने इस जार में डाला तो इसने इस बीकर की शेप ले ली। अगर मैं इसको बॉटल में डाल दूँगी पानी को तो ये बॉटल की शेप ले लेगा। तो लिक्विड्स जो हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अगर हम बात करें उनकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम उनकी डेफिनेट होती है। वॉल्यूम इज़ डेफिनेट। लिक्विड्स की जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होती है, उनकी जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होती। अगर इस बीकर में 250 ml वाटर है तो इट विल रिमेन 250, चाहे मैं इसको बॉटल में ट्रांसफ़र कर दूं, चाहे मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर दूं, तो इनकी जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। और अगर हम इसी तरह से गैसेस के बारे में बात करें तो गैसेस जो हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी लूजली पैक्ड। जैसे ही आप अगरबत्ती को जलाते हो तो उसकी जो फ्यूम्स हैं, अगरबत्ती को आप जैसे ही जलाते हो उसकी फ्यूम्स पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती हैं। आपका एलपीजी सिलेंडर अगर लीक करता है तो आपको दूर से ही पता चल जाता है। अगर मम्मी खाना बना रही है तो आपको खाने की स्मेल किचन से कमरे तक इजीली आ जाती है। तो गैसेस जो हैं वो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत लूजली पैक्ड हैं। अगर हम उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखें तो बहुत डिस्टेंस पे है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में बहुत गैप है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। और अगर हम उनके अब शेप की बात करें तो नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स शेप। जो गैसेस हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अगर हम उनकी वॉल्यूम की बात करें, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। आप इन्हें कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भी फिल कर लेते हो। आप इसको अगर रिलीज़ कर दो तो आप इससे पूरे रूम में भी ये स्प्रेड हो जाएगी। तो नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप।